Students, welcome back in your yoga class. Open your yoga book on page number 10. Today we will study chapter 2, that is pranayama. What is pranayama or yogic breathing? Prana refers to the universal life force and ayama means to regulate or lengthen. Prana is the vital energy needed by our physical and subtle layers without which the body would perish. It is what keeps us alive. Pranayama is the control of prana through the breath. These techniques rely on breathing through the nostrils. प्राणायाम यानी योग श्वास क्या है? प्राण का अर्थ है सार्वभौम प्राण शक्ति और आयाम का अर्थ है नियमन या लंबा करना। प्राण ही हमारे भौतिक एवं सूक्ष्म स्तर की प्राण शक्ति है जिसके बिना प्राण नष्ट हो जाएंगे। यह वह है जो हमें जीवित रखता है। प्राणायाम तो प्राण का श्वास है। ये तकनीकें नाक के माध्यम से सांस लेने पर निर्भर करती है। Now understanding prana. Prana flows through thousands of subtle energy channels called nadis and energy centers called chakras. The quantity and quality of prana and the way it flows through the nadis and chakras determines one's state of mind. If the prana level is high and its flow is continuous, smooth and steady, the mind remains calm, positive and enthusiastic. However, due to lack of knowledge and attention to one's breath, the nadis and the chakras in the average person may be partially or fully blocked, leading to jerky and broken flow. As a result, one experiences increased worries, fear, uncertainty, tension, conflict and other negative qualities. Morning is the best time to practice pranayama, and after you have taken a bath, wear loose clothes and sit straight. So, understanding prana. प्राण हजारों सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों को प्रवाहित करता है जिन्हें नाड़ियों और स्वरूप केंद्रों यानी चक्र कहा जाता है। प्राण की मात्रा और गुणवत्ता नाड़ियों और चक्रों के माध्यम से प्रवाहित होने के कारण ही मनुष्य के मन की अवस्था निर्धारित होती है। यदि प्राण का स्तर ऊंचा हो और उसका प्रवाह सतत समतल और स्थिर रहे तो मस्तिष्क शांत, सकारात्मक और उत्साही बना रहता है। परंतु ज्ञान के अभाव और अपने श्वास की ओर ध्यान न देने के कारण नाड़ियों और अन्य चक्रों में से आंशिक रूप से या पूरी तरह से अवरुद्ध होने से टूटे हुए प्रवाह में झटका लग सकता है। पुनर्जीवन के रूप में व्यक्ति को चिंता, भय, अनिश्चितता, तनाव, संघर्ष तथा अन्य नकारात्मक गुणों का अनुभव होता है। सुबह अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय है। स्नान के बाद ढीले कपड़े पहनें और सीधे बैठें। Now benefits of pranayama. First, it increases and enhances the quality and quantity and quality of prana. It clears blocked nadis and chakras. It makes one's energetic, enthusiastic and positive. It cures and prevents cancer, blood pressure, stress and anxiety, stomach disorders, depression, diabetes, heart problems and so many health issues. Brings harmony between the body, mind, spirit and making one physically, mentally and spiritually strong. तो अब हम इसके लाभ जानेंगे। फर्स्ट, यह प्राण की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाता है। दूसरा, यह अवरुद्ध नाड़ियों और चक्रों को साफ करता है। तीसरा है, यह एक इंसान को ऊर्जावान, उत्साही और सकारात्मक बनाता है। चौथा है, यह कैंसर, रक्तचाप, तनाव, चिंता, पेट की समस्याओं, अवसाद, मधुमेह, हृदय की समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करता और रोकता है।
पांचवा है शरीर, दिमाग और आत्मा के बीच सामंजस्य लाता है और हमें फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाता है। नाउ टाइप्स ऑफ प्राणायाम। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम is one of several pranayams or breathing exercises used in the practice of Hatha Yoga. Let us understand the meaning of Anulom and Vilom. अनुलोम विलोम बहुत सारे प्राणायाम में से एक है, या ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जिसका इस्तेमाल होता है हाथ योगा में। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अनुलोम विलोम। अब हम अनुलोम विलोम का मीनिंग समझेंगे। इन दिस the first word anu roughly translates as with, and word loma means hair, implying with the grain or natural, and meaning of vilom is against the grain. तो अनुलोम का मतलब क्या है? नेचुरल, ग्रेन, और विलोम का मतलब है उसका ऑपोजिट। Anuloma is opposite to Vilom. It is very helpful in respiratory related diseases like asthma. ये जो अनुलोम विलोम है ये सांस से संबंधित बीमारियां जैसे अस्थमा में बहुत ही हेल्पफुल है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इज द बेस्ट वे टू बैलेंस द ट्राइडोसस इन आवर बॉडी। तो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है ये सबसे बेस्ट तरीका है जिससे हम बैलेंस कर सकें। क्या बैलेंस कर सकें? जो ट्राइडोसस है, त्रिदोषास है हमारे शरीर के, उसको। और बॉडी फॉल्स इल व्हेन त्रिदोषास आर नॉट इन बैलेंसिंग पोजीशन। हमारा शरीर बीमार कब होता है? जब ये जो त्रिदोषास हैं हमारे शरीर में वो बैलेंसिंग पोजीशन में नहीं होते हैं। वात, पित्त, कफ आर नोन एज त्रिदोषास। ये त्रिदोषा हैं। 3 मीन्स 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 होता है, 3 होता है। एंड द मीनिंग ऑफ दोषास इज इम्प्यूरिटीज। दोष का मतलब क्या होता है? इम्प्यूरिटीज, अशुद्धता। ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एवरीवन। और ये सारी चीज़ें हर एक के शरीर में मौजूद होती हैं। इफ़ वन ऑफ देम इज इम्बैलेंस्ड देन वी सफ़र फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। अगर इसमें से कोई भी इम्बैलेंस होती है तो हम अलग अलग बीमारियों से हमें अलग अलग बीमारियाँ हो जाती हैं। ऑल ऑफ 3 आर द कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। और ये तीनों चीज़ें सारी बीमारियों का कारण होती हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस दिस ट्राइडोसस। तो इस त्रिदोष को बैलेंस करना जरूरी है। इफ़ यू रियली वांट टू बैलेंस दिस त्रिदोषस देन डू अनुलोम विलोम प्राणायाम रेगुलरली। यदि आप सच में बैलेंस करना चाहते हैं अपने त्रिदोषस को तो आप रोज़ अनुलोम विलोम व्यायाम कीजिए। First of all, close your eyes and sit in Padmasana and rest your hand on your knees. सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आप पद्मासना में बैठ जाइए और अपने हाथों को अपनी नीज पे रखिए। सेकेंड, क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल विद द राइट थंब। अपने राइट नॉस्ट्रिल को आप राइट थंब से क्लोज कीजिए। इनहेल स्लोली थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप इनहेल कीजिए। इनहेल द ऑक्सीजन एज मच एज यू कैन, और आप जितना ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं उतना कीजिए। एंड दिस विल फिल योर लंग्स विथ एयर, और इससे आपका जो लंग्स है वो एयर से फिल हो जाएगा। रिमूव योर थंब फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल। अब आप अपने राइट नॉस्ट्रिल से थंब को रिमूव कीजिए। एज यू रिमूव योर थंब फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल जस्ट एक्सहेल, और जब आप अपने थंब को रिमूव करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से तो बस आप एक्सहेल कीजिए, सांसों को बाहर छोड़िए। नेक्स्ट, व्हेन यू एक्सहेल यूज़ योर मिडिल फिंगर टू क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप अपने मिडिल फिंगर से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर दीजिएगा। देन इनहेल विथ योर राइट नॉस्ट्रिल। अब आप राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए एंड रिमूव द थंब फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल एंड देन एक्सहेल, और राइट नॉस्ट्रिल से थंब को रिमूव करके फिर आप एक्सहेल कीजिए। रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट तक आप इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। नेक्स्ट, बी फोकस्ड एंड कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग। आप अपनी ब्रीथिंग पे फोकस कीजिए और कंसंट्रेट कीजिए। बेनिफिट्स, फर्स्ट, इट हेल्प्स टू क्योर मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, टेंशन एक्सेट्रा। इसके बेनिफिट क्या है? ये मेंटल प्रॉब्लम्स को क्योर करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी, टेंशन,
नेक्स्ट, इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एक्सेट्रा। ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ये बहुत बेनिफिशियल हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा एक्सेट्रा। इट इम्प्रूव्स द वर्किंग ऑफ लंग्स, ये लंग्स की वर्किंग को भी इम्प्रूव करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. We will continue this chapter in your next class. Thank you.